بہت شکریہ سائرہ جی. شکریہ. دوستوں آج کی دوسری ریسیپی ایپل جلیبی بھی بن کر تیار ہے. اگر آپ بھی اسے گھر پر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کیجئے اس کی ریسیپی. ایپل جلیبی بنانے کے لیے چاہیے سیب، میدا، بیکنگ پاؤڈر، چینی، تیل اور پستہ. ایپل جلیبی بنانے کا طریقہ: سب سے پہلے ایک پین لے، اس میں پانی اور چینی ڈال کر اس کی چاشنی تیار کریں اور ایک باؤل میں سیب اور میدا ڈال کر مکس کریں. پھر ایک کڑھائی میں تیل اور مکس سیب ڈال کر فرائی کر کے چاشنی میں ملائیں اور ایک سرونگ پلیٹ میں نکال کر سرو کریں. دوستوں ہمیں امید ہے کہ آج کی دونوں ریسیپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی. جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہماری کوکنگ ایکسپرٹ سائرہ بانو جی کا. سائرہ جی آپ ہمارے پروگرام میں آئی اس کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ. آپ گھر بیٹھی ناظرین مایوس نہ ہوں کیونکہ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتی ہیں. بس اپنی ریسیپیز ہمیں خط کے ذریعے بھیج دیجیے. اپنی ریسیپیز بھیجنے کے لیے نوٹ کیجیے ہمارا پتہ. ہمارا پتہ ہے اکثر رسوئی 2E/12 3rd فلور، جھنڈے والان ایکسٹینشن، نیو دہلی 110055. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے responseurdu@etv.co.in. تو دوستوں اکثر رسوئی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. اگلی بار ہمارے اس پروگرام کی ایک اور صحت مند قسط لے کر ہم آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. قاصد نہیں یہ کام تیرا، اپنی راہ لے. قاصد نہیں یہ کام تیرا، اپنی راہ لے. اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے. اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے. یہ دن سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. جو ہو سکتا ہے اس سے وہ کسی سے ہو نہیں سکتا. جو ہو سکتا ہے اس سے وہ کسی سے ہو نہیں سکتا. مگر
اگلا پروگرام ناظرین خاص بات کے ساتھ میں ہوں ہی نا. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. بورا فرقے کے روحانی پیشوا سیدنا برہان الدین ممبئی کے روضہ اطہر میں سپرد لحد آخری دیدار کے لیے جمع کئی لاکھ عقیدت مند. مظفر نگر فساد متاثرین کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں مل پا رہا ہے داخلہ. پرائیویٹ اسکولوں نے پیش کی اپنی اپنی خدمات. مہاراشٹر کا سرحدی علاقہ کوکن بنا اردو ادب کا نیا گہوارہ. ادیبوں نے کہا اردو کا نیا دبستان بننے کی فضا سازگار. اور معروف ادیب چندربھان خیال اقبال ایوارڈ کے لیے منتخب. سیرت نبوی پر تصنیف 9 لاکھ پر ملے گا ایوارڈ. شروعات کریں گے آج کی بڑی خبر کے ساتھ. داؤدی بورا فرقے کے روحانی پیشوا سیدنا برہان الدین کو سپرد لحد کر دیا گیا. سیدنا کے آخری دیدار کے لیے لاکھوں عقیدت مند ممبئی میں جمع ہو گئے اور شہر کی سڑکیں تنگ دامنی کا شکوہ کرنے لگی. عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی وجہ سے آج صبح بھگدڑ بھی مچ گئی جس کی وجہ سے 22 افراد کی موت ہو گئی اور متعدد افراد زخمی ہو گئے. داؤدی بہرا فرقے کے روحانی پیشوا سیدنا برہان الدین کو ممبئی کے بھنڈی بازار میں واقع روضہ اطہر میں سپرد لحد کر دیا گیا. سیدنا کے آخری دیدار کے لیے ممبئی میں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند جمع ہو گئے تھے. سیدنا برہان الدین کا جمعے کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا. وہ 102 برس کے تھے. سیدنا کا جلوس جنازہ صبح 10 بجے سیفی محل سے برآمد ہوا اور ممبئی کے مختلف راستوں سے گزرتا ہوا بھنڈی بازار پہنچا. سیدنا برہان الدین کے فرزند سیدنا مفضل الدین نے سیدنا کی نماز جنازہ پڑھائی. سیدنا کا جسد خاکی ترنگے میں لپٹا ہوا تھا. بورا طبقے کے لوگ اپنے روحانی پیشوا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھے. لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مندوں کے جمع ہونے کی وجہ سے ملابار ہلز علاقے میں بھگدڑ مچ گئی جس کی وجہ سے متعدد افراد کی جانیں گئیں. پولیس کا کہنا ہے کہ دم گھٹنے اور بھگدڑ کی وجہ سے ہلاکتیں پیش آئی ہیں. ایک دم پی ایس سسٹم نہیں تھا ادھر تو گیٹ بند ہو گیا. تو گیٹ بند ہونے سے کچھ لوگ جو ہے گر گئے. لیکن زیادہ تر جو ہے ڈاکٹر صاحب میرے بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر جو ڈیتھ ہوئی ہے جو موت ہوئی ہے وہ سفوکیشن ہوا ہے. ادھر بہرا طبقے نے پولیس اور حکومت پر جلوس جنازہ کے لیے مناسب انتظام نہ کرنے کا الزام لگایا ہے. I'm not much aware about that, but the only thing I would like to say that there was lot of people pouring in, and there was not much of the attention given from the side of government and the police, who should have been here and who should have managed the things. It is my personal opinion. سیدنا برہان الدین گجرات کے شہر سورت میں پیدا ہوئے تھے. وہ سیدنا طاہر سیف الدین کے بڑے فرزند تھے. 1965 میں وہ اپنے والد کے جانشین بنے. سیدنا برہان الدین بہرا فرقے کے 52ویں روحانی پیشوا تھے. مصر کی حکومت نے انہیں وہاں کے اعلیٰ ترین سیویلین ایوارڈ ولادت النیل اور اردن کی حکومت نے ستارے اردن کے اعزاز سے سرفراز کیا تھا. سیدنا کی سماجی اور تعلیمی خدمات کے پیش نظر قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا تھا. بیورو رپورٹ ETV نیوز. قومی حقوق انسانی کمیشن نے مظفر نگر اور شاملی کے راحت کیمپوں میں 47 اموات کی تصدیق کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے موت کی وجہ معلوم کرنے اور ان کے گھر والوں کو معاوضہ دینے کی ہدایت دی ہے. یوپی کی راجدھانی لکھنؤ میں 3 روزہ کیمپ کے اختتام پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فساد متاثرین کی بازآباد کاری کے لیے ریاستی حکومت کی تعریف کی. کمیشن نے کیمپوں میں طبی سہولیات کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں بہتر بنانے کی ہدایت بھی دی. کمیشن نے فساد کے دوران خواتین پر مظالم سے متعلق
13 केसों में जल्द अज जल्द कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। कमीशन ने 2 रोजा कैंप के दौरान पुलिस कस्टडी में मौत और एनकाउंटर के 90 केसों की समाअत भी की। इनमें से 25 मामलों में 1,20,50,000 रुपए का हर्जाना देने का भी हुक्म दिया गया है। करा है ये जो बुलडोजर वाली बात, इट वॉज पॉइंटेड आउट टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट द मेडिकल फैसिलिटीज एंड द कैंप्स आर नॉट एडिक्वेट एंड द सेम नीड इम्प्रूवमेंट. It was stated by the government that 47 persons, including children, have died in the camp till 3rd December 2013. The Commission asked the state government to look into the cause of death of these persons and give reasonable compensation to the bereaved families. State government was also asked to provide adequate protection against winter to the persons staying in these camps. नाज़रीन, मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन के हालात किसी से पोशीदा नहीं है। हुकूमत के दावों की हकीकत धीरे धीरे मंजर आम पर भी आ रही है, लेकिन ये भी कहीं सच है कि हर जगह हालात एक जैसे नहीं है। खामपुर गांव में जमीयत कॉलोनी के मुतासिरीन के बच्चों की तालीम का मसला दरपेश था, लेकिन अब ये मसला हल हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। फसाद के बाद मुजफ्फरनगर के खामपुर गांव में सैकड़ों लोगों को सर छुपाने के लिए आशियाने मिल गए। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन दूर दराज इलाकों से यहां पहुंचे उन लोगों के लिए बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रखना एक अहम मसला है। हिजरत पर मजबूर किए गए ये मुतासिरीन हालात से मुकाबला करने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं। अपने नौनिहालों की तालीम का सिलसिला शुरू करने के लिए मुतासिरीन ने सरकारी स्कूलों का रुख किया ताकि बच्चों को दाखिले मिल जाएं। लेकिन स्कूल इंतजामिया ने उन्हें क्या मशवरा दिया, सुनिए मुतासिरीन की जुबानी। सरकारी स्कूल पास में है, हम गए थे वहाँ पे, वो बोले कि जी अब हमारे पास किताबें भी नहीं है, ड्रेस वगैरह भी नहीं है, अगले साल देखो कर लेंगे अगले साल। और अभी तुम्हारे राशन कार्ड वगैरह भी नहीं है। सरकारी स्कूल में मुतासिरीन के बच्चों को दाखिले नहीं मिलने पर एक निजी स्कूल में उन बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। निजी स्कूल के इस इक़दाम से मुतासिरीन को किसी हद तक राहत हुई है। पढ़ाई का जी यूनिक स्कूल में हमारे बच्चे यहाँ से यूनिक पब्लिक स्कूल है ना, उसमें जा रहे सब बच्चे। अच्छा, क्या इंतजाम है, क्या कहा उन लोगों ने पढ़ाने? उन लोगों ने ये कहा हम तुम्हें इन बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, कापी किताबें वगैरह ड्रेस वगैरह सभी उन्होंने इंतजाम किया। यहाँ पे सुबह जुगाड़ आ जा और बच्चे स्कूल चले जाओ। जिन बच्चों का नहीं स्कूलों में हो पाया, मदरसे जा रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं वहाँ पे? वो कुछ इस्लामिया मदरसे में जा रहे हैं बच्चे। मदरसे में जा रहे हैं जी। फसाद मुतासिरीन के साथ अखिलेश हुकूमत का रवैया कैसा रहा ये कहने की जरूरत नहीं, लेकिन बच्चों की तालीम के मामले में भी ये वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत ने दिगर जरूरियात की तरह इस बुनियादी जरूरत को भी नजरअंदाज कर दिया। ईटीवी न्यूज़ मेरठ। आंध्र प्रदेश में वक्फ की जायदाद पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर करने का हुकूमत ने ऐलान किया है। वजीर अक़लियती बहबूद व वक्फ उमूर सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने आज अक़लियती कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल और अक़लियती महकमे के खुसूसी ऑफिसर उमर जलील के हमरा शहर में मौजूद वक्फ जमीनों का मुआयना किया। वाज़ेह है कि हज हाउस से मुत्तसिल जमीन, बेगमपेट की वक्फ जमीन और शादा कॉलेज के रूबरू मौजूद वक्फ जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर करने का मंसूबा है। इस आज सुबह से वो हमारे हज हाउस के बाजू की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को थोड़ा पैसा कम है, कमी पैसे है उसमें। ओपन टेंडर रख के, ओपन टेंडर से जितना किसी ज्यादा उसे बाजू का, उसके बाजू का है, खाली है, वो भी लेके जमाना हो गया। जमाना नहीं, मैं हमारे सेक्रेटरी साहब से और हमारे कमिश्नर से डिस्कस करके वहाँ क्या करना नेक्स्ट इंशाअल्लाह उसके मुताबिक भी जल्दी करेगा। उसके बाद शादान कॉलेज के सामने 500 स्क्वायर यार्ड है, उससे भी कल ही हमारे सेक्रेटरी साहब को 10 लाख रुपए देके इमीडिएट उसे काम स्टार्ट कर दिया। तो एक ग्राउंड फ्लोर 4 फ्लोर्स डाल देके हमारा वक्फ बोर्ड के खुद बनाने पैसों से मैं हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर रघुवीर से बात करके हमारे सेक्रेटरी साहब को, हमारे कमिश्नर साहब को साथ लेकर उनसे मीटिंग करके एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कलेक्टर्स को, जहां जहां वक्फ बोर्ड की लैंड है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डीआरओ को पकड़ के हमारे वक्फ बोर्ड को फिर हैंड ओवर करने। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का। देखिए ETV उर्दू
सभी DTH प्लेटफॉर्म पर डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, खुद नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीकियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कर्नाटक के वजीर इत्तलात और हज आर रोशन बेग की परेशानियों में मजीद इजाफा हुआ है। बेंगलुरु में आज समाजी कारकुन SR हिरामठ और अब्दुल हक सूरती ने मीडिया के सामने रोशन बेग के खिलाफ चंद अहम दस्तावेजात जारी किए। इस मौके पर समाजी कारकुन SR हिरामठ ने कहा कि रोशन बेग के खिलाफ सरकारी जमीन हड़पने के अलावा दीगर संजीदा इल्जाम भी हैं। रोशन बेग के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई थी, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ನಮ್ಮ ಈ ಸೂರ್ತಿಯವರು ನಾವೇನೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೋಟನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಗಂಭೀರ ಆಪಾದನೆಗಳವರ ಮೇಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद के फैसले पर गौर करने का इरादा जाहिर किया है। MP बदरुद्दीन अजमल ने कोलकाता में AIUDF के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर इस बात का इजहार किया। AIUDF के सरबराह का कहना है कि उनकी पार्टी मगरबी बंगाल की 12 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। जो करप्शन जिस तरीके से हुआ है, ये इससे पहले शायद पूरे जितने रिकॉर्ड थे वो सारे तोड़ दिए गए। बंगाल का अपना इशू ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 साल हो गए दीदी को आए हुए। दीदी ने वादा किया था कि हम मुसलमानों के लिए और जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए सब कुछ कर देंगे। अब दीदी कहती है कि मेरे पास फंड नहीं है, सेंट्रल मुझे पैसा नहीं दे रहा है। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि सूरज कितना उठता है, क्योंकि यही आप पार्टी वाले का अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 10-15 दिन के अंदर बहुत सी चीजें इनके भी सामने आ रही है। तो एकदम से देखा जाएगा, उसके बारे में सोचेंगे सीरियसली हम लोग।
बिहार में अक़लियती स्कीमों के निफाज में आने वाली दुश्वारियों पर महकमे के चेयरमैन ने खुद सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका इल्जाम है कि मरकजी हुकूमत अक़लियतों के लिए स्कीमों का ढिंडोरा तो जमकर पीटती है, लेकिन इन स्कीमों के निफाज के लिए संजीदा नहीं होती, और यही वजह है कि बेशतर स्कीमों का खातिर ख्वाह फायदा अक़लियती तबके तक पहुंच ही नहीं पा रहा। किया कि जो सेक्रेटरी है, जो अफसर हमारा जाता है, वो आपके सामने वो नहीं कह पाता है जो हम कहेंगे। जो हमारा प्रॉब्लम है, जो हम देखते हैं गांव में कि मुसलमानों को क्या दिक्कत है, हम कौन सा काम करें कि मुसलमान अक़लियतों का डेवलपमेंट हो। तो इस काम के लिए हम जितना अच्छी बात बता सकते हैं वो हमारा अफसर नहीं बता सकता है आपके सामने। हमने उनसे गुजारिश किया था, उन्होंने कहा था कि हम हर अल्टरनेट महीने हम सभी रियासतों के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर्स को बुलाएंगे, लेकिन उनको भी मुझको लगता है कि 2 साल से ज्यादा हो गया वक्फा, लेकिन एक दिन भी उन्होंने दावत हम लोगों को नहीं दिया, नहीं बुलाया और अक़लियतों के मसले पर गुफ्तगू नहीं की। बज़्म फ़रोग़ अदब कोकन के ज़ेर एहतमाम तड़ियल में एक सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। उर्दू अदब के फरोग में कोकन का हिस्सा उन्वान से मुनक़्क़द इस सिम्पोजियम में उर्दू के मुमताज स्कॉलर्स ने शिरकत की और कोकन की अदबी सरगर्मियों पर रोशनी डाली। महाराष्ट्र में सरजमीन कोकन को जियालों के सरजमीन के हवाले से तो सभी जानते हैं, लेकिन उर्दू अदब के हवाले से यहाँ की सरगर्मियां मंजर आम पर नहीं आ सकी। उर्दू अदब की तारीख में भी इस खित्ते की अदबी सरगर्मियों का कोई हवाला नहीं। सिम्पोजियम के मेहमान खुसूसी खतीब कोकन अली एम शमसी ने कोकन की उर्दू अदब की तारीख पर कुछ इस तरह से रोशनी डाली। इनका कहना है कि अब जबकि मुल्क में उर्दू के दबिस्तान टूट रहे हैं, ऐसे में लोगों की निगाहें सरजमीन कोकन की जानिब है, जहाँ पर उर्दू का दबिस्तान बनने की फजा साजगार है। दरअसल इस वक्त कोकन की फिजा जो है ये उर्दू के दबिस्तान बनने की फिजा है। यहाँ स्कूलों का, उर्दू स्कूलों का, जूनियर कॉलेज का जाल बिछा हुआ है। उसके अलावा दीनी मदारिस भी है, तो उर्दू का जो है बड़ा माहौल बना हुआ है। इससे पहले भी चूंकि यहाँ कोई तहकीक करने वाला नहीं था, लेकिन हम जैसे थोड़े बहुत जानने वाले लोग जानते हैं कि 250 साल पहले हमारे रत्नागिरी में मौलवी इस्माइल बुढ़िया ने जंतर मंतर उर्दू का प्रेस कायम किया था। अब जो फिजा बनी है जिसमें उर्दू के जानने वालों की तरबियत हो रही है, और अब जिस जगह हम आए हैं कई एक नाम हमारे जहन में उछलते हैं। आजाद नू तुड़िल भी यहाँ के थे, साकी तुड़िल भी यहाँ के थे, साहिल तुड़िल भी यहाँ के थे, और नूही और ये तमाम जो वाबस्तगियां देख रहे कि इस वक्त उर्दू के लिए इससे ज्यादा उस्तवार माहौल किसी जगह है हिंदुस्तान में, ऐसा मैं महसूस नहीं करता। मेरे उस्ताद अब्दुल रहीम नस्तर साहब, उन्होंने मुझे बच्चों की आदत तख्लीक करने के लिए तवज्जो दिलाई। दिल्ली से निकलने वाला बच्चों का रिसाला निराली दुनिया, उसमें वो नज़्म शाया हुई और वहीं से बच्चों के लिए आदत तख्लीक करने का मुझ में जुनून पैदा हुआ। 30 साल पहले कोकन के मुहिबान उर्दू ने बज़्म फ़रोग़ उर्दू कोकन के नाम से एक इदारा कायम किया। ये इदारा उर्दू अदब के फरोग, तरवीज और इशाअत में अहम रोल अदा कर रहा है। तज़किरा शोरा कोकन की इशाअत का सेहरा इसी इदारे के सर जाता है, जिसके जरिए सैकड़ों साल कदीम उर्दू सरमाया महफूज हुआ। इदारे की सरगर्मियां जारी हैं। सिम्पोजियम में नौजवान शायर इकबाल सालिक के अदबी अतफाल पर लिखी गई किताब पहला कदम का इजरा भी किया गया। जश्न हो रहा है। वफा साहब, वफा राजेवाड़ी, ये कोहनामक शायर हैं, एक जाती हुई नस्ल है, और जिसकी किताब का इजरा हो रहा है इकबाल सालिक पहला कदम, ये एक नई नस्ल, यानी लोग जो रुखसत हो रहे हैं उनके लिए नए लोग जो हैं वो सामने भी आ रहे हैं, नए कलम सामने आ रहे हैं। तज़किरा शोराए कोकन की शक्ल में एक ऐसी अदबी किताब शाये की गई जो कोकन में एक मुस्तरद अदबी दस्तावेज की हैसियत रखती है। बच्चों के अदब से मुतल्लिक शोआए नौ भी बज़्म की एक काबिल कद्र तसनीफ है, जिसे शाये करके बज़्म ने एक और अदबी कारनामा अंजाम दिया है। सिम्पोजियम में जहां कोकन के उर्दू अदब का जायजा लिया गया, वहीं कोकन के बाहर उर्दू अदब के हवाले से जो कुछ लिखा जा रहा है उसका कोकन के अदब से मुआवजना भी किया गया। ईटीवी न्यूज, कोकन, महाराष्ट्र।
मध्य प्रदेश के चंद्रभान ख्याल को इकबाल अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। चंद्रभान को उनकी तसनीफ लौलाक पर इस अवार्ड का मुस्तहिक करार दिया गया। लौलाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी गई है। चंद्रभान ख्याल को इस अवार्ड के लिए मुंतखब करने पर अदबी हलकों में मिले जुले तासुरात का इजहार भी किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के महकमा सखावत की जानिब से ये अवार्ड मुल्क के नामवर शख्सियतों को दिया जाता है। बावकार अवार्ड पाने वालों में कुर्रतुन्नैन हैदर, सरदार जाफरी, शीन काफ निजाम जैसी नामवर हस्तियां शामिल हैं। अवार्ड 1 लाख रुपए और सिपासनामे पर मुश्तमिल होता है। जो लौलाक का रिकॉग्निशन है और ये सरवर कायनात के अकीदत का फल है जो उन्हें मिला है। अगर अदरवाइज अगर लौलाक न लिखते तो शायद वो इस काबिल मैं उन्हें नहीं समझता कि ये अवार्ड उन्हें दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इस अवार्ड का बड़ा ऊंचा वक़ार है और हिंदुस्तान के टॉप के अदीबों को अभी तक दिया गया है। ये इकबाल एजाज जो है वो मध्य प्रदेश के महकमा सकाफत का बहुत ही बावकार एजाज है और ये बड़ी खुशी की बात है कि आमतौर पर अभी जिन लोगों को भी ये एजाज मिला है वो सही मानों में इसके मुस्तहिक थे। जहां तक चंद्रभान ख्याल साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि एक सही वक्त में सही शख्स को ये एजाज दिया गया। वो उर्दू के शहदाई हैं, मोहम्मद के शहदाई हैं और उन्होंने भी उनका मजमूआ लौलाक पढ़ा है। वो इस बात की गवाही देगा कि ऐसा महसूस होता है जैसे अकीदत, न्याजमंदी, मोहब्बत मुजस्सम होकर हमारे सामने आ गई है। जिस तरह नांदेड़ की स्वामी रमानंद तीरथ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का 16वें कन्वोकेशन का आज इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से महाराष्ट्र के गवर्नर शंकर नारायणन और पंजाब के गवर्नर शिवराज पाटिल चाकोरकर ने शिरकत की। इस मौके पर पंजाब के गवर्नर शिवराज पाटिल चाकोरकर को डीलिट की एजाजी डिग्री भी तफवीज की गई। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तलबा में यशवंत कॉलेज की होनहार तालिबा कहकशा अरशीन को MSc ज़ूलॉजी में गोल्ड मेडल के एजाज से नवाजा गया। इसी तरह साइंस कॉलेज की होनहार तालिबा सना को MSc बॉटनी में गोल्ड मेडल का हकदार करार दिया गया। इकबाल जावेद को उनके तहकीकी मकाले के लिए PhD की डिग्री से भी नवाजा गया। NIT नांदेड़ MSc कंप्यूटर साइंस के सर्वप्रथम स्वर्ण पदक का नाम है शंकरराव भौराजी चौहान स्वर्ण पदक, प्रायोजक डब्ल्यू तिवारी जी प्राचार्य श्लोक आर्या देवी ऑफ इंडिया। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अज से रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। और अब बात करेंगे शीरी जबान उर्दू की। जी हां, कर्नाटक के एक छोटे से शहर बंगारपेट से ताल्लुक रखने वाले सईद इस्माइल
उर्दू स्कूलों में जेर तालीम हजारों तलबा के लिए मिसाल बने हुए हैं। सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल का तालिब इल्म सैयद इस्माइल इन दिनों अमेरिका के खलाई इदारे नासा में